In the name of Lord, the Lord of mercy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. I welcome you all to Hussaini Public High School HMT Srinagar YouTube channel. Now, today my topic is the tense for class 4th. But before explaining the tense, let us have a quick recap of the word verb. As you know, verb is a part of speech. There are 8 parts of speech in English. You know, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition, and interjection. The verb is very important part of speech. As you know, every sentence must have a verb in it. It is not possible for us to frame a sentence without verb. Without verb. Verb is an essential part of the sentence. Without verb, we cannot make a sentence. If there is a sentence without verb, it is meaningless. It is meaningless. Let's define the word verb. Verb is a word which shows action or a feeling or existence. Say for example, play, eat, has, was. Actually, the word verb shows 3 things about the subject. It tells us 3 things about the subject. यानी जो वर्ब है यह हमें सब्जेक्ट के बारे में 3 चीजें बताती है. नंबर 1, पहला है कि what is the subject? What is the subject doing? What is the subject doing? What is the subject doing? यानी सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट क्या करता है? He is playing, he is eating, he is running. यानी एक्शन दिखाता है. Number 2, it shows what is the subject. Subject क्या है? इसकी existence क्या है? इसकी state क्या है? Say for example, he is a teacher. He is a teacher. He is a teacher. इस सेंस में जो आप देखेंगे इसमें is verb है. It shows इसकी existence क्या है? इसकी existence क्या है? इसकी state क्या है? He is a doctor. She is a nurse. देखिए इसकी existence क्या है? Subject की existence क्या है? और तीसरा चीज जो वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताती है वो ये है कि व्हाट सब्जेक्ट हैज, यानी कि सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है. से फॉर एग्जांपल, शी हैज ब्लू आईज. ब्लू आईज, उसके पास नीली आंखें हैं. हैज है इसमें वर्ब, हैज है इसमें वर्ब. या शी हैज 2 सिस्टर्स. I have 1 brother, so on. Now let's define the tense. It is for class 4th, probably आपके शायद ग्रामर बुक पे पेज नंबर 33 पे है. अब हम इस टेंस को देखेंगे. In English there are main 3 tenses. The present tense. पहले हम प्रेजेंट टेंस को ही डिफाइन करेंगे. प्रेजेंट टेंस, when a verb denotes an action in the present time, the verb is said to be in present tense. The verb is said to be in present tense. Say for example, he eats food. He eats food. He eats food. Another example, she sings a song. She sings a song. Now look here. It is verb in present. Sings, verb is in present. When a verb denotes an action in the present time, the verb is said to be in the present tense. अब हम जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रेजेंट में क्या होता है? इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V1. सब्जेक्ट प्लस V1, ये इसका स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट प्लस V1. सब्जेक्ट प्लस, अगर आप से फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्जेक्ट डालेंगे, जैसे हम डालेंगे he runs a race. तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है. ये जो सेंटेंस है, ये तीनों जो सेंटेंस है, he eats food, she sings a song, ये है प्रेजेंट टेंस. क्योंकि इनमें जो वर्ब है वो प्रेजेंट दिखाता है, प्रेजेंट दिखाता है. प्रेजेंट मींस जिसको हम उर्दू में कहते हैं हाल, जो जमाना चलता है, जो जमाना
चलता है। अब इसका दूसरा जो काइंड है टेंस का वो है पास्ट, द पास्ट टेंस। द पास्ट टेंस क्या होता है, यानी कि जिसमें हम ये लिखा कि काम पास्ट में हुआ, काम पास्ट में हुआ हो। When verb denotes an action, when a verb denotes an action that is done, that was done in the past, the verb is said to be in past. Say for example, he ate food. ये जो ate है ये eat का past है, या another example, he sang a song. इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, मिसाल के तौर आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें डालोगे, जैसे अगर हम ताहा लिखेंगे, ताहा, इसके बाद आपको वर्ब पास्ट में डालना है। ताहा वेंट, गो का पास्ट है, वेंट टू स्कूल, ये पास्ट है। तो वी कैन से when a verb denotes an action in the past time, the verb is said to be in past tense. अब जो तीसरा इसका जो है third type of the tense is the future tense. इसको उर्दू में हम मुस्तकबिल कहते हैं। When a verb denotes action that shall take place in future, the verb is said to be in future. Say for example, he will sing a song. वो एक गाना गाएगा, ये मुस्तकबिल की तरफ इशारा है। इट इज फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1। लेकिन यहां पे आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, जब आप ये बनाओगे, से फॉर एग्जांपल शी, इसके साथ विल आएगा, शी विल ईट फूड। यहां का जो एस, जो थर्ड पर्सन के साथ एस होता है, वो खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में हम नहीं लिख सकते शी विल ईट फूड, यहां का वो एस खत्म हो जाता है। शी विल ईट फूड। तो ये था 3 टेंस के बारे में। देयर आर 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इनको कैसे सीखेंगे, हम प्रेजेंट को कैसे चेंज करेंगे पास्ट में और पास्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो ग्रामर बुक है उसके पेज नंबर 43, 44 और 45 पे आपकी कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज A, B, C और D एक्सरसाइज है, और यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम टेंस को चेंज करते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको उस एक्सरसाइज में, जो ए एक्सरसाइज में आपको चूज आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन सा टेंस है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा ही प्लेज चेस। एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे रखी है, ही प्लेज चेस। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, इसमें वर्ब क्या है, और आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो वर्ब है वो है प्लेज, क्योंकि प्लेज ये प्रेजेंट है। तो इसमें जो आपके एक्सरसाइज में आपको इस पे इस तरह लिखेंगे, प्लीज आप इसको वर्ब को बाहर निकालोगे और ये बताओगे ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है। इसी तरह की आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 43 पे है। और अगर दूसरा इस तरह होगा, शी लाइक्ड टॉयज, ये दूसरी एग्जांपल है, वहां पे आप लिखोगे, खुद ही करोगे, शी लाइक्ड टॉयज। आपको बताना है कि ये सेंटेंस ये कौन सा टेंस है। तो इसमें आपको सबसे पहले यू हैव टू चूज व्हाट इज वर्ब। इसमें लाइक्ड है, लाइक्ड इज द सेकंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक, सो वी कैन से लाइक्ड इसमें वर्ब है और ये पास्ट है, ये है पास्ट।
तीसरा सेंटेंस अगर इस तरह होगा, ही विल प्ले हॉकी। इस सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस है और इसमें वर्ब क्या है। इसमें वर्ब है प्ले, विल प्ले। जब हम विल प्ले की बात करेंगे जिसके साथ विल और शैल होगा, दैट मींस वो फ्यूचर है, इसलिए विल प्ले इसमें वर्ब है, विल प्ले इसमें वर्ब है और ये है फ्यूचर, ये है फ्यूचर। तो ये एक्सरसाइज ए में थी, आपको बाकी जो एक पार्ट्स आप उनको खुद ट्राई कर सकते हैं। हाँ, पेज नंबर 44 पे ही दूसरी जो एक्सरसाइज बी है, इसमें आपको बताना है कि वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है शी डैश टू स्कूल। यहां पे आपको वर्ब दिया हुआ है गो, वर्ब दिया हुआ है गो। यहां पे मैं आपको तीन चीज सिखाऊंगा, तो आप लोग बी अटेंटिव। शी डैश स्कूल, ये जो गो है वहां पे एक्सरसाइज बी में आपको ये बताया गया कि आपको एज ए प्रेजेंट इस्तेमाल किया जाए, इसको एज प्रेजेंट इस्तेमाल किया जाए। ये जो गो है, गोज भी है प्रेजेंट। अब यहां पे इसके साथ आएगा शी गोज। गोज इसलिए क्योंकि जो शी है, ये सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब में es आएगा। इसी यही वजह है कि यहाँ पे शी गोज टू स्कूल, हम शी गो टू स्कूल नहीं लिख सकते हैं, शी गो टू स्कूल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट दोनों फॉर्म है, गोज भी है प्रेजेंट, गो भी है प्रेजेंट। तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गोज आएगा, क्योंकि ये इसमें एक रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट टेक्स इस सीक्वेंस ऑफ टेंस में एक रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, द अर्थ मूव्स द अर्थ डैश राउंड द सन, राउंड द सन, राउंड द सन। वहां पे आपको दिया हुआ है मूव। तो इसके साथ क्योंकि वंस अगेन द अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके साथ मूव्स आएगा, इसलिए इसके साथ मूव्स आएगा। पास्ट इसका है मोर, मोर नहीं आ सकता, यहाँ पे गो है, इसका पास्ट है व्हेन, क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज बी में आपको प्रेजेंट इस्तेमाल करना है। ये जो वर्ब्स आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनको एज ए प्रेजेंट आपको इस्तेमाल करना है, इसीलिए यहाँ पे गोज आएगा, यहाँ पे मूव आएगा। या एक और एग्जांपल है, आवर पेरेंट्स डैश अस। वहां पे आपको वर्ब जो दिया है वो लव है, तो सिंपली लव है प्रेजेंट, लव है पास्ट, विल लव या शैल लव है फ्यूचर, इसलिए सिंपली आएगा आवर पेरेंट्स लव अस। क्योंकि इस वक्त सब्जेक्ट जो है पेरेंट्स से प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब भी आएगा। हाँ, अब एक्सरसाइज सी में जो आपको है उसमें आपको पास्ट इस्तेमाल, जो वर्ब्स दिए हुए हैं उनको एज ए पास्ट आपको इस्तेमाल करना है। से फॉर एग्जांपल शी डैश द लेट ऑफिस, OFFICE, वहां पे आपको वर्ब दिया हुआ है कम। हमें इसमें पास्ट जो वर्ब्स दिए हैं उनकी पास्ट फॉर्म आपको डालनी है। द पास्ट फॉर्म ऑफ कम की जो है वो केम, इसलिए आएगा शी केम लेट द ऑफिस, शी केम लेट द ऑफिस, शी केम लेट द ऑफिस, शी केम। पास्ट फॉर्म ऑफ कम का जो है इसका पास्ट है केम, दैट्स व्हाई यहां पे आएगा शी केम लेट द ऑफिस। दूसरा अगर हम लिखेंगे शफी डैश लंच, आपको वर्ब दिया हुआ है वहां पे टेक, तो आपको देखना है कि व्हाट इज द पास्ट ऑफ टेक, इसका पास्ट है टुक, तो यहां पे आएगा शफी टुक लंच, तो ये सेंटेंस पास्ट बन गया।
इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, ही डैश ए लेटर। अगर आपको वहां पे राइट लिखा हुआ है, वर्ब राइट मीन्स लिखना, इसका पास्ट है रोट, इसका पास्ट क्या है रोट, तो यहां आएगा ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। और एक्सरसाइज डी में जो है इसमें आपको फ्यूचर जो वर्ब्स दिए हुए हैं आपको इन्हें एज फ्यूचर इस्तेमाल करना है, इनको आपको एज फ्यूचर इस्तेमाल करना है। से फॉर एग्जांपल ही डैश द फर्स्ट प्राइज, आपको वहां पे वर्ब दिया हुआ है विन, तो विन को आपको इस्तेमाल करना है एज ए फ्यूचर टेंस। आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस V1 होता है। तो एक बात आप याद रख लीजिएगा कि जो ये यहां पे शल और विल, आई और वी के साथ आप शल इस्तेमाल कीजिए और बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे ही होगा शी होगा, इसके साथ आप विल इस्तेमाल करना। इन दो प्रोनाउंस के साथ आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करना, बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ आप विल इस्तेमाल करना। तो इसका हम आएगा ही के साथ विल, ही विल प्लस आएगा इसकी V1, ही विल विन द फर्स्ट प्राइज, he will win the first prize. Yeah, another example, we go to school, आपको वर्ब दिया हुआ है गो का में एज फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करना है, तो इसमें आएगा वी, मैंने बोला कि वी के साथ हमेशा आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल कीजिए, वी शैल गो, V1 आएगा। यहाँ पे गो होता है, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर भी आएगा लेकिन ही मतलब एस नहीं बढ़ेगा। सी फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, अगर इस तरह होगा शी डैश ए सॉन्ग, आपको सिंग एज ए फ्यूचर इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आएगा शी विल, क्योंकि प्रेजेंट में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसके साथ एस आएगा, लेकिन फ्यूचर में एस नहीं लगता है। शी विल सिंग ए सॉन्ग। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आया होगा। और पेज नंबर 43, 44, 45 पे जो एक्सरसाइज ABCD है ग्रामर में, तो मुझे उम्मीद है कि आप वो खुद कर पाओगे अच्छी तरह से। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।